السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام اور آف لائن اور آن لائن اس پروگرام کو سننے والے حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول الایمان کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل ایمان کے 6 ارکان میں سے 4 ارکان پر گفتگو پوری ہوئی۔ چوتھے رکن کے حوالے سے کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ معجزہ اور کرامت اور انبیاء اور اولیاء کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں۔ آج ایمان کے 5ویں رکن کے تعلق سے گفتگو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ایمان کا 5واں رکن ہے یوم آخرت پر ایمان۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ یوم آخرت پر ایمان نہ لائے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر کلمہ گو اپنی 5 وقتہ نماز پنجگانہ کے اندر ہر رکعت کے اندر ایک آیت پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے اوصاف ذکر کرتا ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور مالک یوم الدین پڑھتا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ یوم الدین کیا ہے؟ یہی ایمان کا 5واں رکن ہے۔ یوم الدین جزا اور سزا کا دن، آخرت کا دن، قیامت کا دن، جب انسان اس دنیا سے، جو لوگ بھی جا چکے ہیں، اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد ایک دوسری دنیا قائم ہوگی، اور ساری خلقت پھر نئے سرے سے ایک نئی زندگی عطا کر کے اٹھائی جائے گی۔ یوم آخرت پر ایمان یہ ہر کلمہ گو کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن یوم آخرت پر گفتگو سے پہلے جیسا کہ ظاہر ہے کہ یوم آخرت دنیا کے فنا ہونے کے بعد اور پھر ساری خلقت کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد وہ دن آئے گا، لیکن اس دن کے آنے سے پہلے یا اس دن کو لانے میں کچھ چیزیں مقدمات ہیں، اور ان مقدمات کے بعد ہی پھر وہ دن آئے گا۔ اور وہ مقدمات کیا ہیں؟ مقدمات یہ ہیں کہ ہم اور آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فنا ہوگی، اور اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آئے گا بعث و نشور کا، اور پھر اس کے بعد یوم آخرت کی کارروائیاں ہوں گی۔ تو یوم آخرت پر اگر گفتگو کی جائے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو یوم آخرت کے مقدمات ہیں ان پر گفتگو کی جائے۔ لہٰذا چونکہ یوم آخرت کا سمجھنا ان مقدمات کے سمجھنے پر موقوف ہے، اس لیے یوم آخرت کا جو رکن ہے ایمان کا 5واں رکن، اس پر گفتگو چند محوروں میں ہوگی، جن میں سے سب سے پہلا محور ہوگا کہ اس دنیا کے فنا ہونے کا
جو واقعہ ہونے والا ہے، اس فنا ہونے کے واقعے سے پہلے اور قیامت قائم ہونے سے پہلے کچھ بڑی بڑی نشانیاں اس دنیا میں رونما ہوں گی، جس کے بعد یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی، جس کے بعد چل کر یہ دنیا فنا کے گھاٹ اترے گی۔ تو وہ نشانیاں کیا ہیں جن سے یہ اندازہ لگے گا کہ اب یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اب یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد قبر کی زندگی ہے۔ ہر انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، تو قبر کی زندگی کیا ہے، کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے؟ تو قبر کی زندگی کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کرنی پڑیں گی، اور قبر کی زندگی پر گفتگو 3 مرحلے میں ہوگی، جس میں سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ قبر کے اندر انسان کو جو نعمتیں دی جائیں گی، اچھے انسان کو ان کا ذکر کیا جائے، اور برے انسان کا جو برا انجام ہونے والا ہے، جو عذاب اور سزا اس کو دی جائے گی، اس کو بیان کیا جائے۔ دوسری بات یہ ذکر کی جائے گی کہ قبر کی زندگی میں، مرنے کے بعد قبر کی زندگی جو انسان کی ہوگی، اس میں جو بھی آسائش یا تکلیف ہوگی وہ صرف روح پر ہوگی یا جسم پر ہوگی یا روح اور جسم دونوں پر ہوگی، چونکہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد اسلامی عقیدے کے مطابق قبر کے اندر ہر شخص کو سوال اور جواب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، اور منکر اور نکیر ہر شخص کے پاس آئیں گے۔ تو یہ منکر اور نکیر کیا ہیں، کون ہیں، ان کے بارے میں اور ان پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری کیوں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا جو محور ہوگا، وہ بتایا آپ کو کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی قیامت کی، ان کے بارے میں بات۔ دوسری بات، قبر کی زندگی میں جو پیش آنے والے واقعات ہیں، حادثات ہیں، نعیم یا نعمتیں یا پھر سزائیں، اور پھر ان سے متعلق باتیں۔ اور تیسرا محور یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھایا جائے گا، جس کو بعث کہا جاتا ہے، اس دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یوم آخرت ہی کے تحت یہ سارے مراحل ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو بعث بعد الموت، یہ تیسرا محور ہوگا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اس محور پر چند الگ الگ نکات پر گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے بعث کسے کہا جاتا ہے، یعنی زندہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیلیں کیا ہیں، نقلی اور عقلی دونوں دلیلیں انشاءاللہ دونوں اعتبار سے ان کی دلیلوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد حوض کوثر کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی، حوض کوثر کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اور حوض کے تعلق سے دلیلیں کیا ہیں۔ پھر میزان، جس پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، وہ ترازو جس پر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، وہ کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے اور اس کی دلیلیں کیا ہیں۔ پھر شفاعت کیا ہے، جو قیامت کے دن شفاعت ہوگی، تو اس شفاعت کے بارے میں، شفاعت کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کی دلیلیں۔ اور پھر اس کے بعد پل صراط کا آپ نے برابر تذکرہ سنا ہوگا، تو یہ پل صراط کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے اور اس کی دلیلیں کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور پھر آخری مرحلہ آئے گا جنت اور جہنم، جو حساب و کتاب کے بعد انسان کا دائمی اور ازلی ٹھکانہ بننے والا ہے۔
इम्मा इलल जन्ना व इम्मा इलन नार। इंसान का दायमी ठिकाना या जन्नत होगा या जहन्नम होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का अजली ठिकाना, हमेशा हमेश का ठिकाना, दायमी ठिकाना जन्नत बनाए, हमारा, हमारे सारे आइज़ा और अक़रबा का, और हम जितने भी लोग इस दर्स को सुन रहे हैं, इस दर्स में शामिल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को और हमारे मुताल्लिक़ीन को और सारे अहले इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, और हम सब को और हम सब के अहलो अयाल को और हम सब के आइज़ा और अक़रबा को और सारे अहले इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग से पनाह अता फरमाए। तो सातवां महवर होगा, सातवां नुक्ता या सातवां पड़ाव हमारा होगा जन्नत और जहन्नम के बारे में गुफ्तगू, और जन्नत और जहन्नम की सिफत क्या कुरान और सुन्नत में आई है, और उन पर ईमान कैसे लाया जाए और उनकी दलीलें क्या हैं, इस पर हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। और इस तरीके से ईमान बिल यौमिल आखिर पर हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आइए सबसे पहले जो सबसे पहला महवर है यौम आखिरत पर ईमान का, वो है क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ। यानी इस दुनिया के फ़ना होने से पहले कुछ अजीम निशानियाँ इस दुनिया ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाहिर फरमाएगा, जिससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये दुनिया अब अपनी तबाही के करीब है, अपने फ़ना होने के करीब है। आप जानते हैं कि क़यामत के कायम होने की सही इत्तला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी मखलूक को नहीं दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में बहुत सारे सवालात इस ताल्लुक़ से आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जवाब नहीं दिया, लोगों को इससे आगाह नहीं किया। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह कह करके क़यामत के वक़ू का जो सही तरीन वक्त और इल्म है, जो मौके है, जो उसका पीरियड है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म में ख़ास कर रखा है, उससे किसी मखलूक को आगाह नहीं किया। हाँ, क़यामत की निशानियां ज़रूर बतला दी हैं, जिन निशानियों को पढ़कर और सुनकर और जानकर एक इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि अब ये दुनिया अपनी इंतहा को पहुँचने वाली है, अपनी इंतहा और अपने अंजाम के करीब है। लिहाजा वो निशानियाँ जिनका जिक्र कुरान और सुन्नत के अंदर आया है, क़यामत की निशानियों के तौर पर, दुनिया के फ़ना होने के इशारिये के तौर पर, इंशाअल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसे अरबी ज़ुबान में कहा जाता है अशरातुस्साअह। अशरातुस्साअह, अशरात ये शरत की जमा है। अशरात ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये शरत की जमा है, जिसका माना होता है अलामत, निशानी, और इसी की जमा है अशरात। क्योंकि निशानी कोई एक नहीं है, बल्कि ढेर सारी निशानियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। अभी उसकी तफसील आपके सामने बयान की जाएगी। तो निशानियां चूंकि मुताद्दिद हैं और अलग अलग तरीक़ों की हैं, इसलिए क़यामत की निशानी के लिए शरत की जगह अशरात इस्तेमाल किया जाता है। कुरान करीम ने भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। तो अरबी ज़ुबान की जो डिक्शनरियाँ हैं, उनके एतबार से शरत जो अशरात की का जो वाहिद है वो शरत है, और उसका माना है अलामत। और कहा जाता है अशरातुश्शैइ अवाइलु, किसी चीज़ की अशरात यानी किसी चीज़ की का इब्तिदाई हिस्सा, शुरू का हिस्सा। लिसानुल अरब के अंदर ये दोनों माना जिक्र किया गया है, और दोनों इश्तिकाक यानी अलामत का जो माना बयान किया गया और किसी चीज़ का अव्वलीन हिस्सा, ये दूसरा माना बयान किया गया, ये दोनों इश्तिकाक के एतबार से एक दूसरे के करीब हैं। इसलिए कि किसी चीज़ की निशानी उस चीज़ का पहला हिस्सा होता है, शुरू का हिस्सा होता है। इस एतबार से जो अव्वलीन का माना है, किसी चीज़ का अव्वलीन हिस्सा और अलामत, दोनों में कोई तजाद नहीं है, दोनों ही एक एतबार से करीब करीब मफहूम पर दिलालत करते हैं।
अशरात अस्साअ। उसके बाद दूसरा लफ्ज है अस्साअ। अस्साअ उसका तर्जुमा हम करते हैं क़यामत से, लेकिन अस्साअ अरबी जुबान में किसे कहा जाता है? ये वक्त नापने के वक्त के अज्जा में से एक जुज, वक्त के हिस्सों में से एक हिस्सा को अस्साअ कहा जाता है। और क़यामत का दिन अस्साअ कहकर क़यामत का दिन मुराद लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इंदहु इल्मुस्साअ, सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 85। और अस्साअ ये क़यामत के दिन के नामों में से सबसे मशहूर नाम है कुरान और सुन्नत के अंदर और आम लोगों की बोलचाल में। और क़यामत के दिन को अस्साअ कहा गया। अस्साअ क्यों कहा गया? चूंकि क़यामत का दिन अचानक धर दबोचेगा, अचानक लोगों पर आ पड़ेगा। जैसे जब वो आ जाएगा तो एक पल के अंदर पूरी काया पलट हो जाएगी। तो अस्साअ वो एक पल, जो एक पल में पूरी ये काया पलटेगी, उस पल के नाम पर क़यामत के दिन का नाम ही पल रख दिया गया, अस्साअ रख दिया गया, क़यामत रख दिया गया। यानी अस्साअ कह करके क़यामत का दिन मुराद लिया जाता है इस एतबार से कि क़यामत का दिन बिल्कुल अचानक, मुफाजअतन, बिल्कुल अचानक आएगा। और इसकी तफसील अहादीस शरीफा में आई है कि किस तरीके से ये अचानक होगा। यानी इस कदर अचानक होगा, इस कदर अचानक होगा कि एक बंदा दूध अपने हाथ में लेकर पीने के लिए मुंह में लगाने को होगा और इस बीच में क़यामत आ जाएगी। ऊँटनी से दूध दूह रहा होगा, पूरी तफसीलात अहादीस के अंदर आई हैं। तो जिस तरीके से वो पल भर में ये दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, क़यामत वाक़े हो जाएगी, उस पल भर के अंदर, तो ये पल भर का जो लफ्ज़ है ये यहाँ से लिया गया। यानी वक्त गुजरने के हिस्सों में से एक छोटा हिस्सा, और उस नाम पर क़यामत के दिन का नाम रख दिया गया। तो अस्साअ कह करके क़यामत का दिन मुराद लिया जाता है। अब आइए अशरातुस्साअ पर गुफ्तगू हो जाए। अशरातुस्साअ यानी अशरात का लफ्ज जब अस्साअ के साथ जोड़ा जाता है, इसका मतलब होता है क़यामत के दिन की निशानियां। ये आपके सामने बयान किया गया कि शरत का माना अलामत होता है, निशानी होता है। तो अशरातुस्साअ जब हम कहते हैं तो उसका मतलब हुआ क़यामत की निशानियां, क़यामत की अमारात, यानी क़यामत की पहचान, जो क़यामत के कायम होने से पहले ज़ुहूर पजीर होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 18 में कि फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा। तो वो नहीं इंतज़ार करते हैं मगर क़यामत का, इस बात का कि वो अचानक धर दबोचे उनको। तो यकीन रखो तहक़ीक़ की उसकी जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं वो तो आ ही चुकी हैं, यानी और क़यामत भी उसके मान बाद आना तय है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। अब क़यामत की जो निशानियां जिक्र की गई हैं नुसूस से किताब व सुन्नत के अंदर, कुरान व हदीस के अंदर, वो 3 किस्मों पर है। इसको आप ज़ब्त करते हुए चलें ताकि बात आसानी के साथ समझ में आ सके। अशरातुस्साअ जब कहा जाता है तो अशरातुस्साअ 3 तरीके के हैं, 3 किस्मों पर हैं। पहली किस्म उन निशानियों की है जो जाहिर हो भी चुकी और जाहिर होकर खत्म भी हो गई। दूसरी किस्म उन निशानियों की है जो जाहिर हुई और लगातार अभी जारी हैं, यानी अभी खत्म नहीं हुई। और तीसरी किस्म वो निशानियां हैं जो क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और ये बड़ी बड़ी निशानियां हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में और दिगर सहाबा किराम की रिवायतों में उनका जिक्र आया है कि वो जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं उनकी तादाद 10 है। तो 10 जो निशानियां हैं वो अशरातुस्साअ अल कुबरा उनको कहा जाता है, यानी क़यामत की
बड़ी बड़ी निशानियां जिनकी तादाद 10 है, और वो कौन कौन सी हैं उन पर भी गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं करूंगा। तो क़यामत की जो निशानियां हैं वो इन 3 किस्मों पर है। पहली किस्म जो जाहिर भी हो चुकी हैं और जाहिर होकर ख़त्म भी हो चुकी हैं। दूसरी किस्म जो जाहिर हो चुकी हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई, वो अभी इस्तिमरार उनका जारी है, वो कॉन्टिन्यूसली वो अभी चल रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म है जो क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो जाहिर होने वाली हैं क़यामत के बिल्कुल करीब में। तो आइए सबसे पहली जो निशानियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो निशानियां जो पहली किस्म अशरात-उस-साआ की है, क़यामत की पहली जो पहली किस्म है निशानियों की, ये वो निशानियां हैं जो दूर की निशानियां हैं, यानी जो जाहिर भी हो चुकी और जाहिर होने के बाद ख़त्म भी हो गई। इनमें से आप शुमार कर सकते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबऊस होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनकर इस दुनिया में आना, ये अपने आप में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जैसा कि सहीहैन में अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाह की रिवायत से वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ का इशारा करते हुए फरमाया। व दम्म अस्सबाबत वल वुस्ता, सबाबा और वुस्ता को आपने ऐसे जमा किया और इन दोनों उंगलियों का ऐसे जमा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया कि बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, कि मैं और क़यामत इस तरीके से भेजे गए, यानी जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जम है, एक दूसरे के साथ मिली हुई है, इन दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं है, बीच में कोई दूसरी उंगली नहीं है, ऐसे ही मेरी बिअसत और क़यामत के वक़ू के दरमियान कोई तीसरी चीज और नहीं है, बल्कि मेरा मबूस होना ये क़यामत के कायम होने की निशानी है, क़यामत के कायम होने का इशारिया है। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है, जैसा कि आपके सामने बयान किया गया। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरीके से इस पहली किस्म की निशानियों में से चाँद का दोलख्त होना भी है, चाँद का दो टुकड़े होना, शक्कल कमर का वाक़या, ये भी आप कुर्ब क़यामत ये क़यामत की निशानियों में से है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कमर के अंदर फरमाया, सूरह कमर आयत नंबर 1 में कि इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब हो गई और चाँद दोलख्त हो गया। तो चाँद का दोलख्त होना ये क़यामत के करीब होने की अलामत बतलाया गया। जाहिर सी बात है ये बात हुई भी और जाहिर होकर ख़त्म भी हो गई। तो ये क़यामत की शक़्क़े कमर का वाक़या ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरीके से क़यामत की इस किस्म की निशानियों में से एक निशानी वो आग है जो हिजाज की सरजमीन से निकली थी, जिससे बुसरा के ऊँटों की गर्दनें रोशन हो गई थीं। बुखारी और मुस्लिम के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि हिजाज की सरजमीन से एक आग निकलेगी, जिस आग से बुसरा के ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। और ये आग जो हिजाज से निकलेगी और इसकी लबें और इसकी लपटें इतनी ऊंची होंगी कि बुसरा के जो ऊँट हैं उनकी गर्दनें रोशन हो जाएंगी। कहते हैं कि ये आग जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, ये आग निकल चुकी है।
जमाद आखिरा सन 654 हिजरी में ये आग मदीना के मशरक़ी हिस्से से निकली थी और बह पड़ी थी, जिसके सबब से आग की वादियां वहां पर जारी हो गई थी और लोगों के अंदर खौफ व हरास और दहशत का एक माहौल पैदा हो गया था। और उसकी रोशनी अहले शाम ने भी देखी थी और बुसरा के बाशिंदों ने भी देखी थी। और ये बुसरा जिसका जिक्र यहाँ किया गया है, ये दिमश्क के नवाह में जो बस्तियां वाक़े हैं उनमें से एक बस्ती का नाम है। वहां के ऊंटों की गर्दनें उस आग से रोशन हो गई थी, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दिया। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया व निहाया के अंदर तफसील के साथ इसको जिक्र किया है। तो ये निशानी भी जो आग के जाहिर होने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था कि हिजाज से एक आग निकलेगी, वो आग निकल चुकी है। और हिजाज में आप जानते हैं कि मदीना शामिल है, तो मदीना के मशरक़ी हिस्से से ये आग निकली थी। तो ये क़यामत की निशानियों में से वो निशानी है जो जाहिर हुई और ख़त्म हो गई। और भी निशानियां हैं इसी तरीके से। अब आइए क़यामत की निशानियों की दूसरी किस्म, जिसके बारे में बताया था आपसे कि ये दरमियानी निशानियां हैं। ऊपर की जो निशानियां पहली किस्म है वो निशानियां जो दूर की निशानियां हैं, और ये दूसरी किस्म जो दरमियान की निशानियां हैं, यानी जो जाहिर हो तो चुकी हैं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि लगातार वो बढ़ती जा रही हैं और उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी वो है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील के अंदर फरमाया है। जब जिब्रील ने क़यामत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल, कि जो पूछने वाला है उससे ज़्यादा जिनसे पूछा गया है उनको भी इल्म नहीं है। यानी मसऊल और साइल, जिनसे पूछा गया वो और जो पूछ रहे हैं वो, दोनों इस मामले में बराबर दर्जे पर हैं। दोनों में से किसी को क़यामत के वक़ू का इल्म नहीं है। फिर जिब्रील ने क़यामत की निशानियों को पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि हाँ, निशानियां ज़रूर बतलाई जाएंगी। तो उनमें से जो निशानी आपने बतलाई उसमें निशानी ये थी कि अन तलिदल अमतु रब्बतहा, अन तलिदल अमतु रब्बतहा। क़यामत की निशानियों में से निशानी ये है कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी, लौंडी अपने मालिक को पैदा करेगी। इसके बारे में शारिहीन हदीस कहते हैं कि लौंडी अपने मालिक को या अपनी मालकन को कैसे जन्म देगी, इस तौर पर कि लौंडी से उसका मालिक या उसका आका जिमा करेगा और उस जिमा से उसका बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा जो उसका होगा वो उसके आका और मालिक के कायम मकाम होगा, जबकि वो उसका अपना बच्चा होगा। लेकिन चूंकि वो लौंडी है और वो बच्चा सैयद का है, उसके आका का है, तो वो बच्चा भी आका के हुक्म में होगा। इसलिए कि इंसान का माल अब उसके बेटे के लिए होता है, तो यहाँ से ये माना उसका लिया गया है। और भी इसके मानी बयान किए गए हैं। अच्छा, इसी तरीके से उसी हदीस जिब्रील के अंदर क़यामत की निशानियों में से ये निशानी भी बतलाई गई है कि नंगे पैर, नंगे भूखे, यानी नंगे पैर चलने वाले और भूखे बकरियों के चरवाहे वो ऊंची ऊंची इमारतों के बनाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे। इमाम मुस्लिम ने हदीस जिब्रील की तखरीज की है और ये तफसील के साथ उसूल ईमान के शुरू में इस पर बात तफसील से हो चुकी है। उसमें जिब्रील ने पूछा था फ़अख़बिरनी अनिस्साअ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल। तो जिब्रील ने पूछा था कि फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, तो मुझे आप क़यामत के बारे में ना सही क़यामत की निशानियों के बारे में बतलाइए।
तो आपने फरमाया था अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफातल औरातल आलत रिआ अश्शाई यततावलून फिल बुनियान। तो ये जितनी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बयान फरमाई हैं, ये सारी की सारी क़यामत की निशानियों में से है, और ये सब चीज़ें ज़ाहिर हो चुकी हैं और लगातार इसमें बढ़ोतरी और कसरत ही होती चली जा रही है, उसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। इसी तरीके से क़यामत की ये दूसरी किस्म की निशानियों में से 30 नबूवत के झूठे मुद्दईयान का ज़ुहूर है। 30 मुद्दईयान नबूवत पैदा होंगे, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदा की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दज्जाल कज़्ज़ाब पैदा होंगे जिनकी तादाद 30 होगी, और उनमें से हर शख्स ये गुमान कर रहा होगा कि वो अल्लाह का रसूल है। ये रिवायत बुखारी शरीफ की है, 3609 नंबर की हदीस। इसी तरीके से सुनन अबू दाऊद और इमाम तिर्मिज़ी ने सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा से रिवायत बयान की है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए कहते हैं कि वइन्नहु सयकूनु फी उम्मती 30 कद्दाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मेरी उम्मत में 30 सबसे बड़े झूठे पैदा होंगे, उनमें से हर बंदा गुमान करेगा कि वो नबी है, जबकि हाल ये है कि नबियों के सिलसिले के खातिम मैं हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ये 30 दज्जाल कज़्ज़ाब जो मुद्दईयान नबूवत होंगे, इनका ज़ुहूर ये क़यामत की निशानियों में से है, और ये दज्जाल कज़्ज़ाब मुद्दईयान नबूवत बाज़ पैदा हो चुके हैं और बाज़ पैदा हो रहे हैं और बाज़ पैदा होंगे। तो ये सिलसिला ज़ाहिर हो चुका है और लगातार इसका ज़ुहूर जारी है। इसी तरीके से क़यामत की एक इसी किस्म की निशानियों में से लोगों ने शुमार किया है, लेकिन ये अभी वाक़ई नहीं हुई है, वो है फ़ुरात का खुश्क हो जाना, और खुश्क होने के बाद उसके दरमियान से सोने के एक पहाड़ का ज़ाहिर होना, जिसमें लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई और झगड़ा करेंगे सोने के हसूल के लिए, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदा की रिवायत में है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए कहते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि फ़ुरात के दरमियान से एक पहाड़ ज़ाहिर होगा, वो खुश्क हो जाएगा उसका पानी, उसके दरमियान से एक ऐसा पहाड़ ज़ाहिर होगा जो सोने का पहाड़ होगा। लोग उस पर एक दूसरे की जान के दर पे हो जाएंगे, और 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे, और उनमें से हर शख्स कहेगा, हर शख्स ये गुमान करेगा कि 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा, और उन क़िताल करने वालों में से हर बंदा ये तसव्वुर कर रहा होगा कि वो एक बच जाने वाला वो होगा, और इस चक्कर में सारे के सारे मारे जाएंगे और आखिर में कोई एक उनमें का बचेगा। ये निशानी अभी वाक़ई नहीं हुई है। तो ये क़यामत की वो ये दरमियानी निशानियाँ थी जिनके बारे में अक्सर ये जिक्र किया गया कि अक्सर वाक़ई हो चुकी हैं, और उनका सिलसिला अभी जारी है। तीसरी किस्म क़यामत की निशानियों में से उन निशानियों की है जिनको अलामात कुबरा कहा जाता है, या अशरातुस्साअतिल कुबरा कहा जाता है, क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ। और ये वो निशानियाँ हैं जिन निशानियों के ज़ाहिर होने के फौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी, और ये 10 निशानियाँ हैं। ये बड़ी बड़ी निशानियाँ 10 निशानियाँ हैं, उनमें से अब तक कोई निशानी ज़ाहिर नहीं हुई है। ये 10 निशानियाँ क़यामत के बिल्कुल करीब में वाक़ई होंगी, और इनमें से 10वीं निशानी के वाक़ई हो जाने के बाद फौरन क़यामत आ जाएगी। उसके बाद फिर कोई फासला, कोई वक्फा बीच में नहीं होगा। इमाम मुस्लिम ने अपने सही में
हुदैफा इब्न उसैद से रिवायत बयान की रज़ी अल्लाह अन्हु वअर्ज़ा, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हमारे हमारे दरमियान तशरीफ लाए, दरा हाले कि हम क़यामत का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बहस कर रहे हो? हमने लोगों ने कहा कि हम क़यामत के बारे में तज़किरा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की वो हरगिज़ हरगिज़ कायम नहीं होगी, यहाँ तक कि उससे पहले तुम 10 निशानियां देख लो। 10 निशानियां देख लो। वो निशानियां क्या क्या होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र फिर हुदैफा ने तफसील के साथ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखान का जिक्र किया। दुखान यानी एक धुआं जाहिर होगा। धुआं, दुखान का मतलब धुआं, धुआं जाहिर होगा, वो पहली निशानी। उसके बाद कहा दज्जाल, नंबर 2। नंबर 3 अद्दाब्बा। दज्जाल, इसकी भी तफसील, इनमें से हर निशानी को मुफस्सल बयान करने की ज़रूरत है, लेकिन ये हमारा मौजू यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ तफसील इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश की जाएगी। दज्जाल का ज़ुहूर, ये भी क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरीके से दाब्बतुल अर्द, चौपाया, जो क़यामत की 10 निशानियों में से एक निशानी है, और उसकी खुसूसियत ये है कि वो इंसानों से हम कलाम होगा। हम कलाम भी होगा और इंसानों पर इंसानों को निशान जद करेगा। मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान वो निशान लगाएगा, फर्क करेगा दोनों में। तो दाब्बतुल अर्ज़ ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरीके से सूरज का बजाय मशरिक के मगरिब से तुलू होना, और ये भी क़यामत की, बल्कि ये क़यामत की आखिरी निशानी होगी, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। उस वक्त तक जिसने तौबा नहीं किया है, उसके बाद तौबा भी उसकी किसी बंदे की कबूल नहीं होगी। ये क़यामत की आखिरी निशानियों में से शुमार किया जाता है उसको। इसी तरीके से क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से ईसा इब्न मरियम अलैहि वाला नबीना अस्सलातु व तस्लीम का आसमान से नुज़ूल है। वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे, और उनका इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरीके से याजूज और माजूज का खुरूज, याजूज और माजूज का ज़ुहूर होगा, और ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ये 6 निशानियां हुई, यानी दुखान, दज्जाल, दाब्बतुल अर्द, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल, और याजूज और माजूज। उसके बाद हुज़ैफा की रिवायत में 3 निशानियां जमीन धंसने की जिक्र की गई हैं। जमीन 3 जगह पर धंसेगी, और 3 अलग अलग जगहों पर धंसेगी, उनको 3 निशानियां माना गया है। जमीन का धंसना, और ये आम धंसना नहीं होगा, ये क़यामत की जाहिर सी बात है 10 बड़ी निशानियों में से है, तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इसका हजम कितना होगा। एक जमीन धंसेगी मशरिक में, और जमीन धंसने का दूसरा वाकया होगा मगरिब में, और तीसरा जमीन धंसने का वाकया जजीरे अरब के अंदर। तो 6, 3, 9 ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से हुज़ैफा की रिवायत में जैसा कि आया है, ये 9 निशानियां हुई। और 10वीं निशानी वो आग है जो लोगों को भगाकर महशर के मैदान की तरफ हका ले जाएगी। ये 10 निशानियां हैं क़यामत की, जो बड़ी बड़ी निशानियां जिनको कहा गया है, और ये रिवायत इमाम मुस्लिम ने इसको जिक्र किया है। 2901 नंबर की रिवायत है इमाम मुस्लिम के यहाँ। बाज़ दूसरी अहादीस में क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में 3 बार जमीन धंसने के अलावा, यानी 3 बार जो जमीन धंसेगी, उसके बजाय इन 10 बड़ी निशानियों की जगह पर मेहदी के ज़ुहूर को रखा गया है, और काबा शरीफ, काबतुल्लाह, उसका मुनहदिम कर दिया जाना, इसको जिक्र किया है, और कुरान करीम का जमीन से उठा लिया जाना, इसको जिक्र किया है। यानी 3 बार जो जमीन धंसने के वाकयात होंगे,
ان تین نشانیوں کی جگہ پر، تین دھسنے والے واقعات کی جگہ پر ان تین نشانیوں کو رکھا گیا ہے، یعنی مہدی کا ظہور اور کعبۃ اللہ کا منہدم کر دیا جانا اور قرآن کریم کا اٹھا لیا جانا۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں ان میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، یعنی زمین دھسنے کا جو 3 واقعہ ذکر کیا گیا وہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ زمین دھسنے کے یہ تینوں واقعات، یعنی مشرق میں زمین دھسنے کا واقعہ، مغرب میں زمین دھسنے کا واقعہ اور جزیرہ عرب میں زمین دھسنے کا واقعہ، یہ پہلے ہوگا اور اس کے بعد یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو ان میں سے 7 نشانیاں تو حذیفہ کی روایت میں جو بیان کی گئی، اور 3 نشانیاں جو باقی ہیں وہ مہدی کا ظہور اور کعبہ کا منہدم کر دیا جانا اور قرآن کریم کا اس دنیا سے اٹھا لیا جانا، کہ قرآن کے اوراق باقی رہ جائیں گے لیکن اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ محققین علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ زمین دھسنے کے جو واقعات ہیں وہ ان 10 بڑی نشانیوں میں شامل نہ کیے جائیں، وہ ان 10 بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ دوسری روایت جو حذیفہ کی دوسری جگہ پر آئی ہے وہاں سے انہوں نے اس چیز کو جوڑ کر کے اور اس کا یہ مضمون نکالا ہے، یعنی زمین کا جو دھسنا ہوگا وہ ان 10 نشانیوں کے ظاہر ہونے کی تمہید ہوگی، جس کے بعد قیامت کی باقی 10 نشانیاں وہ لگاتار ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ مسلم شریف کے اندر روایت 2901 میں جو حذیفہ کی روایت ہے اس کے اندر الفاظ ہیں کہ ان الساعة لا تكون حتى تكون 10 آیات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزیرۃ العرب والدخان والدجال۔ پھر اس کے بعد بقیہ نشانیوں کو شمار کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حذیفہ کی روایت میں قیامت کی نشانیوں کا جب بیان کرنا شروع کیا حذیفہ نے تو کہا کہ سب سے پہلے ان زمین دھسنے کے واقعات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ امام قرطبی یہاں پر کہتے ہیں کہ اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو ان 10 بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانیاں جو ظاہر ہوں گی وہ زمین دھسنے کے واقعات ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ان میں سے بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہو بھی چکی ہیں۔ ابن وہب نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر زمین دھسنے کے واقعے کو اشراط الساعہ الکبریٰ میں شمار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے محققین علماء اس طرف گئے ہیں کہ زمین دھسنے کے واقعات یہ مقدمہ ہوں گے اور جو 10 نشانیاں ہیں وہ اس کے بعد ظاہر ہوں گی۔ اب آئیے ان 10 نشانیوں پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ ایک ہلکا سا ایک اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ سب سے پہلی نشانی مہدی کا ظہور۔ مہدی کا ظہور، آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اس وقت مہدی امت مسلمہ کے امام ہوں گے، سارے مسلمان مہدی کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مہدی کا ظہور پہلے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا قصہ، دجال کا معاملہ، یہ سارا کا سارا معاملہ یہ بعد میں ہوگا۔ تو ترتیب کے اعتبار سے مہدی کا ظہور پہلے ہوگا۔ آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ یہ مہدی کون ہے اور کیا ہے؟ ان کے حوالے سے امت مسلمہ کا ایک جو طبقہ یا امت مسلمہ میں سے جو ایک گروہ امت مسلمہ میں سے کہنا بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے، روافض اور شیعہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے یہاں مہدی کا جو تصور ہے وہ ایک الگ تصور ہے۔ وہ اپنے اس خاص امام کو مہدی مانتے ہیں جو سرداب میں غائب ہو چکا ہے ان کا، وہ مہدی مراد نہیں۔ جب ہم مہدی کی بات کرتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی مہدی ہے،
تو یہ مہدی وہ والے مہدی نہیں ہے جو شیعوں کے ہیں، روافظ کے ہیں۔ یہ مہدی کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہی سے ہوں گے، لیکن یہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی نسل سے ہوں گے، اور یہ اس وقت نکلیں گے جب پوری روئے زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، تو وہ آئیں گے اور پوری زمین کو انصاف، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، اور ان کے والد کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، بعینی یہی نام مہدی کا بھی ہوگا۔ مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ابو داؤد و ترمذی کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سارے عرب کا مالک میرے اہل بیت میں سے ایک بندہ ہوگا جس کا نام میرے نام اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و ستم سے بھر دی گئی ہوگی، یعنی ان کے ظہور سے پہلے ظلم و ستم سے کا بازار گرم ہوگا، اور وہ آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد پوری روئے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ تو یہ ہے مہدی۔ اس کے بعد دوسری نشانی دجال کا ظہور، مسیح دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ مسیح دجال کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں میں سے ہی ایک بندہ ہوگا، بنو آدم ہی میں سے ہوگا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہی میں سے ایک شخص ہوگا جو آخری زمانے میں نکلے گا، اور جس کے ذریعے سے ڈھیر ساری مخلوقات فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر بعض ما فوق الفطرت چیزیں جاری فرمائے گا، یا خرق عادت چیزیں اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہوں گی۔ وہ اپنے آپ کو رب کہلائے گا، لیکن اس کی باطل یا اس کا باطل دعویٰ مومنین پر نہیں چل سکے گا، اور وہ تمام شہروں کے اندر داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، وہ ہر گلی کوچے نکڑ پر جائے گا، لیکن دو شہروں میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ دو شہر ہیں مکہ اور مدینہ۔ اس کے ساتھ جہنم ہوگی اور جنت ہوگی، تو اس کی جو جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ صحیح احادیث شریفہ اس کے خروج پر دلالت کرتی ہیں، جن میں سے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے یہاں جس کی تخریج کی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے دجال خروج کرے گا، یعنی دجال کا خروج میری امت میں سے ہوگا، یعنی وہ انسانوں میں سے ہوگا۔ وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا، 40 مہینہ کہا، یا 40 سال کہا۔ راوی اس پر تو مطمئن ہے کہ آپ نے 40 کا لفظ کہا، لیکن اس کے بعد راوی کنفیوز ہے کہ یہ 40 کیا ہے، 40 کا جو عدد ہے یہ کس کے لیے ہے، 40 دن کے لیے یا مہینے کے لیے یا سال کے لیے، اس کی تحدید نہیں کر سکا۔ بہرحال وہ 40 ٹھہرے گا، اب وہ 40 دن یا 40 مہینہ یا 40 سال، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام کو مبعوث فرمائے گا۔ ان کی شکل ایسی ہوگی گویا وہ عروہ ابن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بالکل ہم شکل ہوں گے۔ تو وہ آئیں گے اور دجال کو ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر اسے مار ڈالیں گے۔ یہ روایت جیسا کہ آپ کو بتلایا امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے، 2940 نمبر کی حدیث ہے۔
इसी तरीके से सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा व अरदाहुमा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान खड़े हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान की जिसका वो अहल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का तज़किरा फरमाया और आपने दज्जाल का तज़किरा करते हुए कहा कि मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। कोई नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं भेजा मगर उसने अपनी कौम को दज्जाल से डराया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम को दज्जाल से डराया। लेकिन मैं तुमसे दज्जाल के बारे में एक ऐसी बात बता रहा हूं जिसे किसी नबी ने नहीं बतलाया। तुम जान लो कि वो काना होगा, तालमूना अन्नहु अअवर व अन्नल्लाह लैसा बिअअवर। तुम्हें मैं एक अजीम निशानी बतला रहा हूं जिसके जरिए से वाज़ेह तौर पर तुम उसे पहचान लोगे। वो काना होगा, रब होने का मुद्दई भी होगा और काना भी होगा। इसी से आप अंदाजा लगा रहे कि अगर वो वाकई रब है तो पहले अपनी एक आंख तो अपनी आंखों को तो सही कर ले। वो अपनी आंख सही करने पर कादिर नहीं होगा और दावा ये होगा कि वो रब है। तो आप साथ में फरमाया कि ये निशानी मैं तुम्हें बतलाया जा रहा हूं, ये किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई है। तो क्या बताया उसकी निशानी कि वो काना है और अल्लाह काना नहीं है। तो ये दज्जाल का मामला हो गया। इस पर तफसील के साथ बहुत गुफ्तगू की जा सकती है। उसकी निशानियों को अहादीस शरीफा में बयान किया गया, उसका वाक़या जिक्र किया गया, क्या क्या वो करेगा और फिर कैसे ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, नुज़ूल होगा और फिर कैसे वो बहुत तफसील इसके अंदर है, लेकिन यहाँ उसका महल नहीं है। क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी ईसा अलैहि वाला नबीना सलातो व तस्लीम का आसमान से ज़मीन पर उतरना है और वो इंसाफ परवर बन करके उतरेंगे, अदल करने वाले बनकर उतरेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को सूवर को कत्ल करेंगे और दज्जाल का काम तमाम करेंगे, जैसा कि कुरान और अहादीस में इस सिलसिले में दलीलें आई हुई हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 61 में, वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअह। इसके अंदर और भी क़िराअत हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि उन क़िराअत से इस माने को और मज़ीद वाज़ेह ये माना और मज़ीद वाज़ेह होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी के तौर पर आएंगे। इस आयत से ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर बहुत सारे मुफस्सिरीन ने दलील पकड़ी है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अरदाहुमा हब्रुल उम्मा, उनसे भी ये तफसीर मनक़ूल है, जैसा कि इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अरदाहुमा से इस आयत की तफसीर में नक़ल करते हुए कहा कि वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, यानी क्या इसकी तफसीर बयान की इब्न अब्बास ने कि हुवा खुरूज ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम क़ब्ल यौमिल क़ियामा। ये ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का खुरूज है क़यामत से पहले। जी, तो इस आयत की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का ये कौल इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में जिक्र फरमाया है। इसके अलावा अगर अहादीस की बात करें तो ढेर सारी अहादीस सरीहा के अंदर ईसा इब्न मरियम अलैहि नबीना सलातो व तस्लीम के इस दुनिया के अंदर दोबारा आसमान से उतर कर आने का तज़किरा मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा रिवायत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, करीब है कि तुम में इब्न मरियम उतरें इंसाफ परवर हाकिम बनकर, और वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया खत्म कर देंगे और माल बकसरत हो जाएगा। इतनी माल की बहुतात होगी कि कोई माल को कबूल करने वाला नहीं होगा। यहाँ तक कि एक सजदा, इंसान का एक सजदा दुनिया व माफिया से उस वक्त बेहतर होगा। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर है, यानी मुत्तफक अलैह रिवायत है। इमाम बुखारी ने
2222 नंबर पर, और इमाम मुस्लिम ने 155 नंबर की रिवायत के तौर पर इसको नकल किया है, और ये अल्फाज इमाम मुस्लिम के हैं। तो ये ईसा इब्न मरियम अलैहि वाला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुज़ूल का किस्सा है, और इसके अंदर तफसील बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका ये मौका नहीं है। चौथी निशानी, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से चौथी निशानी याजूज और माजूज का निकलना है। याजूज और माजूज ये एक बहुत बड़ी तादाद होगी लोगों की, और कोई कौम इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। कहा जाता है कि ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से, उनके बेटों में से एक बेटा याफिस नाम का था। ये याजूज माजूज उसी याफिस की औलाद में से होंगे। तो उन याजूज और माजूज के खुरूज पर कुरान और सुन्नत की दलीलें मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अंबिया आयत नंबर 96 और 97 में कि हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून वक़तरबल वअदुल हक़ फइज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने याजूज और माजूज का जिक्र किया, और ये जिक्र किया कि जब वो लोग निकलेंगे तो हर कोने खदरों से वो बड़ी तादाद में निकलते चले जाएंगे। उनकी तादाद की कसरत का अंदाज़ा इस आयत करीमा से होता है। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम ने ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा व अर्दाहा से रिवायत बयान की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घबराए हुए दाखिल हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब फुतिह मिन रदम याजूज व माजूज मिस्ल हादी व हल्लक़ बिउस्बिही अल-इब्हाम वल्लती तलीहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए आए ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन के पास, और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, दहशत के मारे अल्लाह कलमे तौहीद पढ़ा। उसके बाद कहा कि अरब के लिए खराबी हो उस बुराई से जो करीब हो चुकी है। याजूज माजूज का जो सद था, उनकी जो दीवार थी वो तकरीबन फतह की जा चुकी है। उनमें से सिर्फ अपनी उंगली से इशारा किया कि सिर्फ इतना हिस्सा बाकी है, यानी अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली को मिला करके आपने इशारा किया कि सिर्फ इतना हिस्सा बाकी है, यानी याजूज और माजूज का निकलना बिल्कुल करीब हो चुका है। तो यहाँ से ये रिवायत भी मुत्तफ़क़ अलैह है। सही बुखारी 3346 नंबर की हदीस है, और मुस्लिम में 2880 नंबर की हदीस है। इससे पता चलता है कि याजूज और माजूज ये क़ुर्ब क़यामत में इनका खुरूज होगा, और ये तादाद इनकी बहुत बड़ी होगी। किसी कौम के अंदर इतनी सकत नहीं होगी कि वो इसके मद्दे मुकाबिल आ सकें, इनका मुकाबला कर सकें। और फिर इसकी तफसील आई है कि इनका खात्मा कैसे होगा, और कैसे पूरी ज़मीन बदबूदार हो जाएगी, और कैसे उनकी लाशों को ठिकाना लगाने के लिए भी अल्लाह ताला परिंदों को भेजेगा। वो एक बहुत लंबी तफसील है। पांचवी अलामत, क़यामत की बड़ी 10 बड़ी निशानियों में से पांचवी बड़ी निशानी काबा का मुनहदिम कर दिया जाना, और काबे के अंदर जो दौलत होगी उस दौलत को लूट लिया जाना है ज़ुस्सुवैक़तैन के जरिए से। ज़ुस्सुवैक़तैन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का नाम भी जिक्र किया है जिस शख्स के हाथों काबा की तबाही होनी है और काबा को मुनहदिम किया जाना है, जिसके बाद फिर काबा दोबारा तामीर नहीं हो सकेगा। तो ये काबे के इन्हदाम की कार्रवाई करने वाला जो शख्स होगा उसका नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो ज़ुस्सुवैक़तैन होगा। साक़ की तस्गीर है सुवैक़। शारिहीन ने बयान किया कि उसकी दोनों पिंडलियां काफी दूर दूर होंगी, छोटी पिंडलियां होंगी और दूर दूर होंगी, और ये हबशा का होगा, हबशा से होगा, यानी सूडान वगैरह के इलाके से कहीं से होगा, जैसा कि इस सिलसिले में सही रिवायात आई हुई हैं।
मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत में, यानी वो रिवायत जिसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने नकल किया है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए कहते हैं कि काबा को वीरान और बर्बाद कर देगा ज़ुस्सुवैक़तैन, जो हबशा का होगा। इमाम अहमद ने अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह से सही सनद से रिवायत बयान की है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ज़ुस्सुवैक़तैन, जो हबशा का होगा, वो काबा को वीरान कर देगा और उसकी जीनत की चीज़ें, उसकी जितनी भी जीनत की चीज़ें और जेवरात उसके अंदर या उस जो दौलत है, उन सारी चीज़ों को छीन लेगा, और यहाँ तक कि काबा का गिलाफ भी काबे का गिलाफ भी वो लूट लेगा और काबा को बगैर गिलाफ के कर देगा। और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला और कहा, जो मुस्नद अहमद की इस रिवायत में आया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलकअन्नी अंज़ुरु इलैहि उफ़ैदा यज़रिबु अलैहा बिमिसहातिही व मिअवलिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत को बयान करते हुए फरमाया कि मैं अभी अभी गोया उस बंदे को देख रहा हूं, फरमाया कि वो गंजा होगा, सर में बाल होंगे ही नहीं, उसैला यानी बाल खत्म हो चुके होंगे, मुकम्मल उसके बाल खत्म हो चुके होंगे, गंजा होगा। उफैदा कहा कि उफैदा होगा, यानी वो उसके जिस्म के आज़ा गैर मुतनासिब होंगे, उबड़ खाबड़ सा उसके जिस्म के जोड़ जोड़ दिखाई देंगे, मुतनासिब जिस्म उसका नहीं होगा। और इससे पहले गुजर चुका है कि ज़ुस्सुवैक़तैन कहा गया कि छोटी छोटी पिंडलियां होंगी और उनके दोनों पिंडलियों के बीच में काफी फासला होगा। वो क्या करेगा, का यज़रिबु अलैहा बिमिसहातिही व मिअवलिही, वो काबा पर अपनी कुल्हाड़ी और अपने कुदाल के जरिए से वार करेगा और काबा की ईंट से ईंट बजा देगा, यानी काबा को पूरे तौर पर मुनहदिम कर देगा। ये रिवायत, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है और सनद सही है। तो ये क़यामत की पांचवी बड़ी निशानी है कि काबा मुनहदिम हो जाएगा और मुनहदिम कर दिया जाएगा और उसकी सारी दौलत लूट ली जाएगी। छठी क़यामत की बड़ी निशानियों में से छठी निशानी है दुखान, यानी आसमान से बहुत बड़ी मिकदार में धुआं उठेगा और वो धुआं इतनी कसीर मिकदार में होगा कि वो लोगों को ढांप लेगा और उस धुएं के अंदर लोग कुछ देख नहीं सकेंगे, सारा मंजर, सारी फजा उस धुएं से भर जाएगी। कुरान और सुन्नत के अंदर इस दुखान पर दलीलें मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह दुखान आयत नंबर 10 और 11 में फरमाया, फरतक़िब यौम तअती अस्समाउ बिदुखानिन मुबीन यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम। आप इंतजार कीजिए उस दिन का जिस दिन आसमान वाज़ेह धुआं लेकर के आएगा, इतना अजीम और इतनी अजीम मिकदार का धुआं होगा वो कि वो सारे के सारे लोगों को ढांप लेगा और ये दर हकीकत दर्दनाक अजाब होगा। सुन्नत में यानी अहादीस शरीफा में हुज़ैफा इब्न उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु की वो रिवायत जो गुजरी है इससे पहले, उसके अंदर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि क़यामत हरगिज हरगिज कायम नहीं होगी यहाँ तक कि उससे पहले तुम 10 निशानियां देख लो, और उन निशानियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखान का जिक्र किया, उस अजीम मिकदार के धुएं का जिक्र फरमाया है। सातवीं निशानी है कुरान का इस रूए जमीन से आसमान की तरफ उठा लिया जाना, यानी कुरान के हुरूफ मसाहिफ मौजूद रहेंगे, औराक बाकी रह जाएंगे, लेकिन कुरान करीम के जो हुरूफ हैं वो उठा लिए जाएंगे। वहां पर कोई कुरान की कोई आयत न तो
सतर में बाकी बचेगी, न सदर में बाकी बचेगी। न सतर में बाकी बचेगी और ना सदर में बाकी बचेगी। यानी अगर कुरान के हुफ्फाज हैं तो उनके सीनों से कुरान उठा लिया जाएगा, उनके सीनों में कुरान बाकी नहीं बचेगा। और अगर लिखा हुआ है तो सतरों से, यानी कागज के ऊपर से वो सारे हरूफ उठा लिए जाएंगे। तो सिर्फ कुरान के नाम पर औराक बाकी बचेंगे, और जो सीनों के अंदर महफूज है उनमें से सारी की सारी चीजें वो उठा ली जाएंगी। सीने में कुरान में से कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से 7वीं निशानी के तौर पर यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया जा रहा है। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में तज़किरा आया है। इब्न माजा ने और हाकिम ने हुज़ैफा से रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा से रिवायत बयान की। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए कहते हैं कि इस्लाम मिट जाएगा कपड़े के नक्शो निगार के मिट जाने की तरह, यहाँ तक कि ना रोज़े पहचाने जाएंगे, ना नमाज पहचानी जाएगी, ना इबादतें पहचानी जाएंगी। और अल्लाह की किताब पर एक वक्त आएगा कि ज़मीन में उसमें से कोई आयत बाकी नहीं बचेगी। ये रिवायत इब्न माजा ने अपनी दूसरी जिल्द में सफ़ा नंबर 1344 पर और हदीस रकम 4049 यानी 4049 पर जिक्र किया है। और इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में चौथी जिल्द सफ़ा नंबर 473 पर इसको जिक्र किया है। और हाकिम ने कहा सहीहुन अला शर्त मुस्लिम व वाफ़क़हु ज़हबी, कि ये इमाम मुस्लिम की शर्त पर है, इमाम हाकिम ने कहा, और इमाम ज़हबी ने इस पर कोई तालीक नहीं चढ़ाई है। तो ये कुरान, ये क़यामत की 7वीं बड़ी निशानी है 10 बड़ी निशानियों में से, कि कुरान करीम के हरूफ उठा लिए जाएंगे, खा वो सीने के अंदर हो या औराक के अंदर हो, दोनों जगहों से। क़यामत की 8वीं निशानी, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से 8वीं निशानी है, सूरज का मगरिब से तुलू होना। इस क़यामत की निशानी पर कुरान के अंदर जिक्र किया गया है और अहादीस के अंदर भी इसका बयान आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनआम आयत नंबर 158 में फरमाता है, यौम यअती बअदु आयाति रब्बिका ला यंफअु नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। के याद करो उस दिन को जब तुम्हारे रब की निशानियों में से बाद निशानी आ पहुंचेगी और उसके बाद किसी इंसान का ईमान उसके लिए नफा बख्श न होगा जो इससे पहले ईमान ना ला चुका हो या ये अपने ईमान में खैर हासिल ना कर चुका हो। यानी इस निशानी के जाहिर होने के बाद फिर किसी का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, यानी किसी की तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। इस निशानी के जाहिर हो जाने के बाद फिर किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। मुफस्सिरीन की एक जमात या मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात इस बात की तरफ गई है कि इस आयत करीमा में तेरे रब की बाद निशानियां जिसको कहा गया है, इससे मुराद सूरज का उसके मगरिब से तुलू होना है, यानी बजाय मशरिक के तुलू होने के सूरज मगरिब से तुलू होगा। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने मुफस्सिरीन के अक़वाल को नकल करने के बाद इस आयत की तफसीर में फरमाया कि जितने अक़वाल इस आयत की तफसीर में जिक्र किए गए हैं उनमें सबसे दुरुस्त कौल, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफा भी दिलालत करती हैं, उन लोगों का कौल दुरुस्त है जिन्होंने कहा कि इससे मुराद सूरज का मगरिब से तुलू होना है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदा की रिवायत से एक हदीस नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा फ़इज़ा तलअत फ़रआहा अन्नासु आमनु अजमऊन फ़ज़ाका हीन ला यंफ़अु नफ्सन ईमानुहा
लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज अपने मगरिब से तुलू हो जाए। जब वो मगरिब से तुलू हो जाएगा और लोग उसको देखेंगे तो सारे के सारे लोग ईमान ले आएंगे, सारे के सारे लोग। उस वक्त कोई एक बंदा भी नहीं बचेगा जो ईमान न लाए, इसलिए कि इस निशानी को देख लेने के बाद फिर किसी को रत्ती माशा शक नहीं बचेगा और सब ईमान ले आएंगे। लेकिन उनका ईमान किसी कोने खतरे का नहीं, किसी फायदे का नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वो वक्त है कि जिस वक्त का ईमान लाना वो ईमान लाने वाले के लिए नफा बख्श नहीं होगा, जो इससे पहले ईमान न ला चुका हो या अपने ईमान में भलाई हासिल न कर चुका हो। तो ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से अजीम तरीन निशानी है। 9वीं निशानी है दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना। दाब्बतुल अर्ज़ ये एक अजीम मखलूक है जिसकी लंबाई 60 गज होगी, जिसके पाए होंगे और जिस पर लंबे लंबे बाल होंगे। कहा गया है कि इसकी खिलकत जरा आम जानवरों से अलग होगी और कई जानवरों के मुशाबिह वो होगा। कुरान और सुन्नत के अंदर उसके क़यामत से पहले उसके खुरूज पर दलील मौजूद है कि क़यामत से पहले ये निकलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नमल आयत नंबर 82 में फरमाया, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। जब उन पर कौल वाक़े हो जाएगा तो हम उनके लिए निकालेंगे ज़मीन से एक जानवर को, जाहिर करेंगे ज़मीन से एक जानवर को, एक चौपाए को, दाब्बतुल अर्ज़, जो जानवर उनसे हम कलाम होगा। तुकल्लिमुहुम, और इसमें एक क़िरात आई है तकलिमुहुम, दोनों माना सही है, दोनों क़िरातें वारिद है, क़िरात सबा में से है और दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं। वो उनसे हम कलाम होगा, बात भी करेगा और उनको निशान जद भी करेगा। क्या कि अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते थे। यानी वो मोमिन और मुशरिक के दरमियान फर्क करेगा, निशानजद करेगा, दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा। इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाह से रिवायत बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें जब वो निकल ज़ाहिर हो जाएंगी तो किसी शख्स को उसका ईमान फ़ायदा नहीं देगा जो इन निशानियों के ज़ाहिर होने से पहले ईमान न ला चुका हो या इससे पहले ईमान लाकर अपने लिए भलाई हासिल न कर चुका हो। जिनमें से एक निशानी है सूरज का मगरिब से तुलू होना, और दूसरी निशानी है दज्जाल का ज़ुहूर, और तीसरी निशानी है दाब्बतुल अर्ज़ का ज़ुहूर, यानी उसी चौपाए का जिसका जिक्र अभी चल रहा है। ये रिवायत सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर 158। इमाम अहमद ने अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत बयान की, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए कहते हैं कि दाब्बतुल अर्ज़ का ज़ुहूर होगा, उस चौपाए का ज़ुहूर होगा, वो लोगों को उनकी पेशानियों पर निशान लगाएगा। और वो निशान इस कदर साफ और वाज़ेह होगा कि बाद में लोग उस निशान के जरिए से एक दूसरे को याद करेंगे। कोई आदमी किसी को ऊंट बेचा होगा तो कहेंगे कि, पूछने वाला पूछेगा तुमने ऊंट किससे खरीदा, तो वो कहेगा कि उस फला निशान लगे हुए शख्स से खरीदा है। इस हदीस की सनद को इमाम हाइसमी ने और दीगर मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। 10वीं निशानी जो क़यामत की अजीम निशानियों में से 10वीं निशानी है, वो एक अजीम आग का ज़ुहूर है। एक बड़ी आग निकलेगी जो आदन से निकलेगी और लोगों को उनके महशर की तरफ हाँक कर ले जाएगी। ये क़यामत की
10 बड़ी निशानियों में से सबसे आखिरी निशानी होगी। इस अजीम निशानी पर अहादीस शरीफा के अंदर दलील आई हुई है, जैसा कि हुज़ैफा इब्न उसैद की रिवायत जिसका तज़किरा गुजरा, जिसको इमाम मुस्लिम ने जिसकी तखरीज की है, और उसके अंदर है वाखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन ततरुदुन नासा इला महशरिहिम, कि इन 10 निशानियों में से सबसे आखिरी निशानी वो आग है जो यमन से निकलेगी। अदन का जिक्र किया ऊपर, अदन यमन के अंदर है, तो यमन से वो निकलेगी और लोगों को उनके महशर की तरफ हाँक कर ले जाएगी। एक दूसरी रिवायत में हुज़ैफा की हदीस में है कि वनारुन तखरुजु मिन क़अरति आदनिन तुरहिलुन नास, कि वो आग आदन की खाइयों से निकलेगी और लोगों को हका कर ले जाएगी, हाँक करके ले जाएगी। इसके बारे में बड़ी तफसील आई है, ये आग कैसे होगी। इसका काम ये नहीं होगा कि वो लोगों को जलाए, जैसे बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत आई हुई है, और उसमें जिक्र के साथ तफसील के साथ इसका तज़किरा हाफिज़ इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर किया है कि किस तरीके से ये आग लोगों को, सिर्फ इसका काम ये होगा कि लोगों को हका करके मैदान महशर तक पहुंचाए। इसलिए वो लोगों के साथ साथ चलेगी। जहां पर लोग खाने पीने के लिए रुकेंगे वहां पर ये आग भी रुक जाएगी, जहां पर लोग रात को क़याम करने के लिए रुकेंगे वहां पर ये आग भी रुक जाएगी, और फिर जैसे सुबह होगी फिर उनको हकाना शुरू कर देगी। यानी इस आग का मकसद ये होगा कि लोगों को हका करके मैदान महशर तक पहुंचाए। तो ये क़यामत की सबसे आखिरी निशानी होगी, और फिर मैदान महशर में पहुंचने के बाद फिर जो मामलात होंगे वो आगे के होंगे। तो ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियां हैं जो क़यामत कायम होने से पहले ज़ुहूर में आएंगी, और ये क़यामत की अजीम तरीन निशानियां हैं। जब ये निशानियां पूरी हो चुकेंगी तो उसके बाद बग़ैर किसी वक्फे के क़यामत कायम हो जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से। और जैसा कि रिवायात में आया है कि इन जो अशरात-उस-साआ में से हर निशानी जब ये ज़ाहिर होना शुरू होगी, क़यामत की बड़ी निशानियां जो 10 निशानियां जिक्र की गई हैं, जब ये ज़ाहिर होना शुरू होंगी तो इनके दरमियान कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं होगा। जैसे निशानियां ज़ाहिर होना शुरू होंगी, यके बाद दीगरे वो लगातार 10 निशानियां आगे पीछे करके ज़ाहिर होंगी। जैसे ये निशानियां इस तरीके से ज़ाहिर होंगी, जैसे समझिए कि एक हार में जो मोती पिरोए हुए हैं, जब लड़ी टूटती है तो एक के बाद एक लगातार मोती गिरना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से एक निशानी के ज़ाहिर होने की देर है, जैसी एक निशानी ज़ाहिर हुई वैसी ताबड़तोड़ निशानियां लगातार ज़ाहिर होने लगेंगी, और यहाँ तक कि आखिरी निशानी ज़ाहिर होकर के इस दुनिया के फना की अलामत बन जाएगी। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने अपनी मौजमुल औसत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से के तरीक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान की है कि आपने फरमाया कि इन निशानियों का ज़ाहिर होना एक के बाद एक लगातार होगा, जिस तरीके से एक लड़ी में पिरोए हुए दाने एक दूसरे के बाद लगातार लगे हुए होते हैं। इस तरीके से लगातार ये क़यामत की निशानियां एक के बाद एक ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। अब यौम आखिरत पर ईमान का जो रुकन था, ईमान के 6 रुकन में से एक रुकन है यौम आखिरत पर ईमान। उसकी पहली कड़ी आज हमने मुकम्मल कर ली अशरात-उस-साआ को बयान करके। अब कल या अगले दर्स में इंशाअल्लाह कब्र की सज़ा और जज़ा से मुताल्लिक और कब्र की ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ तफसील आपके सामने बयान की जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसके बाद यौम आखिरत के हवाले से जो मराहिल शुरू में मैंने बयान किए, उन मराहिल के एतबार से इंशाअल्लाह यौम आखिरत से मुताल्लिक जितनी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में पहुँच जाएँ, वहाँ तक इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू तरतीबवार इख्तिसार के साथ आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मसलक हक़ पर कायम रखे, सलफ़ के नक्श कदम पर चलाए, और कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह के फितनों से हमें महफूज रखे,
اور کتاب و سنت کی روشن شاہراہ پر چلتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے اٹھائے اور ہمارا حشر نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے. ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.